Should we wait or start? Sir, We can start. wait. We can wait 2-3 minutes only, है ना? So that others may join. Just 2-3 minutes. So कल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? Anybody else? सब लोग नए हैं क्या? कल क्लास में कोई नहीं थे क्या? कुछ names, some names are new for me also. Okay. सर कल हम लोग ने एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑफर एक्सेप्टेंस किया था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज किया था. Yes, sir. Can anybody tell us what is the difference between contract and agreement? Amit, just overview. Is both are same or different? Sir, agreement means we are offering to someone, and contract is between we are doing a business between two parties. Hmm. In agreement, suppose I am offering something to Mr. A, only Mr. A will accept that. Offer is for only A, not for B. On behalf of B, on behalf of A, no one can accept it. Okay. In contract, suppose we are contracting a business, we are contracting anything Good. between two companies. Good. Just actually, I wanted to just come to know and then what you have discussed yesterday. So law is applicable in both cases. No, only in contract. Good. No, sir. Basically, what is law?
It is an agreement that is enforceable by law. Yes, so today we will start next unit. I'm just sharing my today 29s are there. Excuse me, sir. निशु, yes, बोले. Sir, I have a doubt. Sir, I want to change my regional center and study center. How can I apply online? What is your regional center and study center? Sir, my regional center is Delhi 2 and study center is Technia Institute. So from where you want to go? Sir, can I do it online? Yes, you can send email to your regional center from your Sir, registered email I ID. have sent सर email yesterday. So please wait, na, it will take time. Okay, sir. सर बीबीए में टेक्निया तो है ही नहीं, मेरा भी पहले वो था तो उन्होंने चेंज करके एसपीडी कर दिया। Yes, sir. Yes, अभी that's the तो main problem. as far my information is concerned, I think SPD will also will change. आपको एसपीडी से भी शायद रीजनल सेंटर्स आपको कोई नया स्टडी सेंटर देंगे एज द केस ऑफ आरसी दिल्ली 2. हाँ सर, सर क्योंकि वहाँ पे भी सर इतना स्पेस नहीं है जो ऑफलाइन क्लासेस हो सके। यस, वो बहुत छोटा सा ही है पहले से। कोई बात नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ योर काउंसलिंग सेशंस विल बी ऑनलाइन एंड रेस्ट विल बी योर थ्रू योर रीजनल सेंटर. And I think या सर, Delhi too will also conduct some counseling sessions. या सर। You will contact them. And sir, assignment जो हमारी है वो कब तक आ जाएंगी? लास्ट फेब तक आएंगे Assignments शायद। are available on IGNOU website. Sir, these are only for 4 subjects. 4 subject. Yes, sir. And what is the सर last date सेकंड for सेमेस्टर what Second is, का है सेम्स ना। के जो सब्जेक्ट है उनकी असाइनमेंट नहीं आई अभी. what is the last date for submission of assignment in your case? Sir, 31st March. So there is a much time for 31st March. And if it is not, whatever latest assignment is available, download it and just write and submit our study center. No issue. Okay, sir. Okay, sir. Don't wait. Whatever is available, you can use. And that should be latest one. Okay, sir. Yeah. Who is another FF 0101? So yesterday you have discussed many things, contract, agreement, laws,
and their implications in contracts and other agreements. We will take the second part of this chapter as a continuation of previous class. Good morning, sir. Good morning. Who is the one? Good morning. Sir, good evening. Good evening. भूल गया था. I सो thought के that उठा. you are joining from out of India. Not Just, from India. just eager to Wakanda. know. Wakanda. Any So this is your second unit, General Law of Contract. Can anybody tell what is contract? I think yesterday there was a big discussion on that topic. What is contract? सर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 2 पार्टीज के बीच में होता है. हम्म, तीन के बीच में नहीं हो सकता क्या? हाँ सर, मतलब Two, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं हाँ, और मैक्सिमम सर कितने भी टू और मोर देन टू. मोर देन. किस टाइप का एग्रीमेंट होता है ये? लीगल एग्रीमेंट. बेसिकली लीगल एग्रीमेंट. होते हैं. Only legal. पता नहीं. जी कौन बोले को पता नहीं? जी आनंद सिंह. जयानंद सिंह बताओ. कल क्लास में नहीं थे क्या? सर कल नहीं आए थे हम. थोड़ा बुखार हो गया था. अच्छा अच्छा, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? सर दिल्ली से. दिल्ली से. गुड. एक रूम लिए हैं, उसी में रहते हैं. ऐसे ओवरव्यू तो पता होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट सर मतलब 2 पार्टियों के बीच में साइन वगैरह होता है किसी प्रॉपर्टी वगैरह या किसी चीज को लेके. डील वगैरह है ना. नहीं, गुड गुड गुड, बढ़िया है. सही है. बढ़िया बढ़िया, अच्छे से. और अपने मटेरियल पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही से जान पाएंगे हम लोग व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. सो सर इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में? डेफिनेशन तो जानन बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई हैं, एक थोड़ी ना है. कहाँ सर? हमको तो नहीं दिखा. मतलब किताब नहीं ली है हमें को. कोई बात नहीं, आप ई ज्ञान कोश से किताब ले लीजिए. ई ज्ञान कोश पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए. So in unit, in block 2, there are 4 units. One is consideration and legality of object. Void agreement. Yesterday आपने पढ़ा था what is void agreement. And contingent contracts, performance and discharge, remedies for breach and quasi contract. आज हम ये 4 यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे. अगर किसी ने मटेरियल पढ़ा है तो बीच बीच में अपनी इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में. हम सब एक दूसरे से चीज़ों को जानने के ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे. So first is consideration and legality. Can anybody tell me what is legality? सर वफादारी. That is loyalty.
लीगलिटी मतलब ऑथेंटिकेशन। लीगलिटी मीन्स जो एज पर रूल ठीक है, हम्म ट्रू है। हम्म इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो, लीगल ऑब्लिगेशंस एज पर आवर रूल्स, फैक्ट्री रूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, इनको फॉलो करते हो, मीन्स द थिंग्स आर लीगल। ओके, इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या नया जानने को मिलेगा? क्योंकि पहले यूनिट्स में आप बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या था, लॉफुल कंसिडरेशंस क्या होती हैं, जिनको हमें फॉलो करना है वो लॉफुल कंसिडरेशंस होती हैं, और किस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या वैलिडिटी होती है, क्या इन्फोर्समेंसिबिलिटी होती है, सब कुछ हम कल की यूनिट में, कल के जो टॉपिक थे उसमें पढ़े होंगे। So this is the meaning of consideration. What is consideration? Although consideration is word used many places, but as far as law is concerned or business is concerned, so consideration is used in sense of quid pro quo, means something in return, जो हमें कुछ वापस मिलता है, that is called consideration. सपोज करिए आप ने कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपने बिना कुछ मिले तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। एक दोनों पार्टी को, एक गिवर होगा, दूसरा टेकर होगा, लेकिन इन अदर सेंस दोनों ही टेकर होंगे, दोनों ही गिवर होंगे, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो। सो दिस समथिंग में बी सम बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को डिफरेंट डिफरेंट रूप में मिलेंगे। और अगर कहीं कंसिडरेशन में थोड़ा सा भी कुछ बदलाव है या कुछ चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉस भी हमको लेने होते हैं। क्योंकि हमारा अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा हो गया कि सपोज करिए हमने किसी पार्टी के साथ हमने कोई एग्रीमेंट किया, कि जैसे कल आपको बताया गया था कि एक हमने एग्रीमेंट किया जिसमें एक कंपनी हमको प्रॉमिस करती है दैट विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली एज एंड व्हेन डिजायर्ड, जब भी जिसकी जरूरत होगी हमें वो सब मिलेगा। लेकिन समटाइम्स अगर वो फेल हो जाता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स सफिशेंट क्वांटिटी में हमारी फैक्ट्री में काम कर रही है और हमें मटेरियल नहीं मिल पाता, प्रॉपर प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली वी विल गॉट सम लॉस एंड सम अदर थिंग्स। सो सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? जियानंद, अब आप थोड़ा सा अब आप शांत रहिएगा, जस्ट सुनिएगा सर। चैप्टर। मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ, ये सिंगम बोल रहा था सर। मैं कहाँ बोला, मैं तो शांत हूँ। थोड़ा सा ग्रुप की बना रही है। हाँ सर, ये सब परेशान कर रहा है। ग्रुप की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, अदरवाइज आई विल टॉक टू द अथॉरिटी दैट क्लास विल बी क्लोज्ड। ठीक है सर, इसके बाद नहीं होगा सर, सॉरी सर। आप सब लोग स्टूडेंट की तो कम से कम मर्यादा को ध्यान में रखिए। दिस इज नॉट फेस टू फेस क्लास कि आप लगे शोर मचाने। अगर आपको नहीं पढ़ना सर, है तो ठीक पढ़िए, है सर। सीखना है तो सीखिए, अदरवाइज नहीं सर, आप गलती हो पढ़ाइए। गया सर, गलती हो गया बच्चे से। बच्चे हैं जी, बीए में आ गए हैं। सर आप पढ़ाइए, सब परेशान कर रहे हैं सर, जाने दीजिए। सिंगम, पहले आप सब लोग शांत रहिए। ठीक है सर। ओके तो सर। देख लेते हैं ये क्लास शांत रह भी पाई, कितने तक शांत रह पाई क्लास। ठीक है सर, ठीक है। सर कंटिन्यू करिए सर। सर आवाज नहीं आ रहा। हम बोल ही नहीं रहे, आवाज कहाँ से आएगा?
ओ सर, ये क्लास लास्ट मेरे ख्याल से 15 दिन से चल रही है, बट इतना डिस्टर्बेंस नहीं। ये पहला क्लास है सर। नो, दिस इज नॉट फर्स्ट क्लास। सर ये 15 दिन से चल रही क्लास। यस। हाँ तेजी नहीं लेस तुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी खत्म हो गई, मतलब अभी फाइनेंशियल। पूरा। एग्जाम अरे में क्या सुनो, आएगा बता दीजिए ना। इस एग्जाम का टेंशन लगे लगे, अभी सिलेबस हुआ ही नहीं। अरे भाई सुनो, ढंग से पढ़ा लेने दो सर को। ये क्लास पढ़ा रहे हैं तो 30 पढ़ ही नहीं रहे तुम लोग। 30 दिसंबर से क्लास चल रही है, समझ रहे हो? हाँ हाँ। बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। तो तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो। ये बाबू कान खराब होगा तो। सर 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 एक काम कीजिए, सिंघम को, जियानंद को और मधु को हटा दीजिए, यही तीनों ज्यादा डिस्टर्ब कर सर रहे हैं। अथर्व को भी सर। ऐसे हटा दोगे? हाँ, तुम पढ़ रहे हो, हम नहीं पढ़ रहे। सर यू आर नॉट ऑडिएबल। Yeah, so these are some definitions, some examples given by many experts. आप इनको पढ़िएगा। The legal rules, there are some legal rules for valid considerations. The first rule is the consideration must move at desire of the promisor. आपने जो एग्रीमेंट में जो प्रॉमिस किया है, कंसिडरेशन उसके प्रॉमिस के मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट लीगल रूल फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी कंसिडरेशन। सर का आवाज स्लो आ रहा है या मेरा सिस्टम का स्लो है? जय बोलो जय जय जय। हाँ सर सबको निकालिए सर।
समोसा बोलो, समोसा। समोसा समोसा। भोसड़ी के सबको निकाल लो, गांडू मादर चोट, बहन के लौड़े। तो क्लास कंटिन्यू कीजिए। Just wait, just wait, please. ये लोग ज्वाइन कैसे किए? ये लोग आर दे रियली स्टूडेंट और सर इधर उधर से लिंक मिल जाती है टेलीग्राम वगैरह से। हाँ, यस सर। इनकी वजह से सर ये लोग ना रैंडमली किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो लिंक शेयर कर रखी होती है ना, तो वहां से ज्वाइन होते हैं। यस सर। क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें ना, एटलीस्ट कम से कम अगर कुछ क्लास में अगर क्योंकि सर यहाँ पे एक ग्रुप पे है नहीं, बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, तो यही रीजन है। ओके, एक्चुअली क्लास का एनवायरनमेंट खराब होता है ना इससे। चलिए, कुछ कंसिडरेशंस हैं जो ये कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग जो बिजनेस मैनेजमेंट में जो इन्वॉल्व हैं। और थर्ड वन इज कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस तरह का कंसिडरेशन है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देखे, तीनों पर बेस हो, यानी कि ऐसी कंसिडरेशन हो जो पास्ट में भी वैलिड हो, फ्यूचर में वैलिड हो, एंड प्रेजेंट में तो वैलिड होनी चाहिए। दोनों पार्टीज के जिन जिन के बीच में एग्रीमेंट है, जिन जिन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो जो कंसिडरेशंस हैं वो सब एप्लीकेबल हों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स में। एक एग्जाम्पल दिया है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कंसिडरेशंस में ये तीनों जो रूल्स हैं वो फॉलो होती हैं। ए एक माइनर है, वाज गिवन द बेनिफिट ऑफ सर्टेन सर्विसेज बाय द प्लेंटिफ एक कंपनी है। द प्लेंटिफ रेंडर्ड दो सर्विसेज नॉट वॉलंटरी बट एट ए डिजायर ऑफ ए के डिजायर के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिस जो डिजायर की थी कंपनी ए ने या पर्सन ए ने। हु सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस टू पे एन एन्युटी टू द प्लेंटिफ, जो बाद में प्रॉमिस करता है कि उसको प्लेंटिफ को भी कुछ दिया जाए एन्युटी के रूप में।
इट वाज हेल्ड दैट पास्ट कंसिडरेशन वाज ए गुड कंसिडरेशन। ये सिंडी वी अब्राहम ने एक एग्जाम्पल के एक डेफिनेशन के माध्यम से हम लोगों ने इसको जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली जब कोई भी एग्रीमेंट होता है दो पार्टी या दो लोगों के बीच में, उसमें जो जो भी कंसिडरेशंस होते हैं, तो वो कंसिडरेशंस अगर पास्ट में वैलिड थे और सेम टर्म एंड कंडीशंस में प्रेजेंट में वैलिड हैं, तो अगर बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ दोनों कंपनियों के बीच में, तो फ्यूचर में भी वो एप्लीकेबल होंगी। और ये सब थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कोई बिजनेस या कोई मैनेजमेंट की टर्म यूज नहीं हो रही है। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी एग्रीमेंट हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों पार्टियों का उसमें बेनिफिट होता है, दोनों पार्टियों का उसमें हित होता है। अगर दोनों में से किसी एक का भी नहीं होगा तो वो कंसिडरेशन वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के रूप में वहीं पर टूट जाता है, वो आगे फिर फर्दर कंटिन्यू नहीं होता है वो। और वैल्यू हो सकती है, वैल्यू मनी हो सकती है, वैल्यू सर्विसेज हो सकती है, या वैल्यू सम काइंड ऑफ और भी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे काइंड ऑफ प्रमोशंस हैं, काइंड ऑफ पब्लिसिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके, एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कोई भी चीज़ है, जैसे आपने पढ़ा भी था कल, कि कोई भी चीज़ है जब तक वो उसमें लीगलिटी वर्ड नहीं आएगा तो वो चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी दोनों पार्टियों के लिए, और तभी वो एक तरह से बाइंड होगी हम दोनों पार्टियों को उसको एक्सेप्ट करने की, दोनों पार्टियों को उसको मानने के लिए, जब तक उसमें लीगल टर्म उसमें ना यूज हो, तब तक वो ऐसे ही एज इट इज सिंपल एग्रीमेंट के रूप में काम करेगा वो। अब लीगल रूल्स किस तरह से हो सकते हैं? लीगल रूल्स प्रोमिसर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो, और जो प्रोमिसी है उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो और उसको सप्लाई कर सके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एप्लीकेबल हो, सम रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ देता हो कंसिडरेशन हमको, और मस्ट बी लीगल। ये समराइज किया है कि किसी भी कंसिडरेशन के लिए देयर आर 5 थंब रूल, दीज आर लाइक दैट। एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक कंसिडरेशन, और इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है, स्ट्रेंजर। तो व्हाट इज स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन और व्हाट इज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन आपने पढ़ा जिसमें 5 थंब रूल्स हैं, and it is a part of kind of agreement, kind of contract. So stranger of consideration या stranger to consideration is valid and acceptable concept. Stranger to be consideration must be distinguished between stranger to a contract। यानी कि इसको अगर हम सिंपल वे में पढ़ें, A wish to indebt to B, sell his property to C, and C promised to pay off the debt of B। यानी कि एक आदमी एक से कर्ज लेता है बी से, उसके बाद वो कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और उसके बाद में बी का कर्ज, एक चेन है ये। अगर इसमें एक भी चेन टूट गई तो वो, यानी कि अगर उसको प्रॉपर्टी किसी की सेल नहीं हुई तो सी बी को अपना पैसा या नहीं दे पाएगा, या फिर ए फर्दर बी को नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक चेन टूट गई, इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से अगर एक भी फेल हो गया तो पूरी की पूरी चेन वो वेनिश हो जाएगी और वो एकदम टूट जाएगा वहां पर। किसी ने कुछ पूछा है तन में? सर ये दोबारा से बता दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट पानी पी लेते हैं।
सर नीलेश 1 मिनट बोलो, पूछो पूछो, आप क्या पूछ रहे हो पहले? सर वो एक यूजर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे क्या ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने के लिए। कौन है? सर दिव्यांशी चंद्रा। बट आई एम नॉट होस्ट। बोलते हैं उनको, अथॉरिटी को बोलते हैं, इनको जो देख रहे हैं उसको। बट क्या सर नाम शी इज बताया? रिक्वेस्टिंग। क्या नाम बताया? दिव्यांशी। दिव्यांशी चंद्रा। बोल देते हैं उनको, रुको। नीलेश, नीलेश, यस सर। हाँ तो हाँ, क्वेश्चन क्या था आपका कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बता रहा था बेसिकली देर आर 3 पार्टीज, ए बी एंड सी। ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि मेरी कोई प्रॉपर्टी होगी, मैं उसको बेच करके आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे ये दे दो, कोई भी सर्विसेज दे दो। बी ने प्रॉमिस कर दिया सी को
सी ने वापस ए को कर दिया, तो देयर इज ए चेन, और इस चेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। जब तीनों एक दूसरे के प्रॉमिस को पूरा करेंगे तभी वो चेन कंटिन्यू रहेगी, और उनके बीच में जो भी कंसिडरेशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो तभी वैलिड रहेगा अगर तीनों उसको फुलफिल करते हैं। अगर उसमें से एक ने भी अगर उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा, नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, कि अगर एक पर्सन है जो इंडेप्ट करता है बी को, यानी कि बी को कुछ उधार दिया, और बी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है सी को, और सी प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बी को पैसे वापस कर दूंगा। यहाँ पर अगर बी की सपोज करिए प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, या सी अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा कर रहा है, तो वहां पर जो होगा स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उन तीनों के बीच में वैलिड तभी होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा कॉन्सेप्ट, जब तीनों उसको अपने प्रॉमिस को पूरा करें। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू हाउएवर द सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट हो, या कुछ उसके ऊपर चार्ज लगा हो, कुछ मैरिज सेटलमेंट हो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो, फैमिली सेटलमेंट होते हैं कई बार, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। इन सब चीज़, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कई बार जो स्ट्रेंजर ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा इन एक्सेप्शंस के साथ। एक है एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। Adequacy of consideration is always the lookout of the promiser. So courts do not see whether every person making the promise has recovered full return for the promise. Thus, if A promised to sell a house worth 80 lakh, yeah, more than, for rupees 80,000 only, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक तरह से अनएडुकेसी हो गई, उसको समझने में या तो लगा कि ये 80 लाख की जगह उसने 80,000 समझा। तो ये एक कंसिडरेशन की एक एडुकेसी होनी चाहिए कि बेसिकली प्रॉमिस दोनों के बीच में है क्या। अगर उसमें 1000 को 100 समझ लेगा, 80 लाख को 80,000 समझ लेगा, तो ये कंसिडरेशन में नहीं आती है। एडुकेसी मीन्स जो भी प्रॉमिस रिटन में है वही फुलफिल हो, एडिक्वेट हो, आपकी टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर एडिक्वेट हो, कितनी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बीच में, जो कॉस्ट लाइज कर रही है वो प्रॉपर टेकन केयर हो। तो यही एडुकेसी नया नहीं है बेसिकली, कि जितना आप कह रहे हैं उतना वो प्रॉपर एडिक्वेट हो कंसिडरेशन में, जो अमाउंट उसमें अगर आया है या कोई भी सर्विसेज आई है, दैट शुड बी एडिक्वेट। ये लीगलिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी एग्रीमेंट है, अगर वो लीगल तभी होगा जब दोनों पार्टियों को वो मान्य हो, और उसमें जो हमारे कंपनीज लॉ हैं, ऑर्गेनाइजेशन लॉ हैं, फैक्ट्री लॉ हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को वो हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो, उसके अगेंस्ट ना हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री के लिए कुछ रूल्स हैं कि ये आबादी से या जो हमारा जो डेंस एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया, उससे इतना दूर होना चाहिए, चिमनी है जो वो उतनी, उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए, ग्रीनरी इतनी होनी चाहिए। तो दीज आर सम रूल्स। लेकिन अगर हम इनको फुलफिल ना करते हुए, इनको फॉलो ना करते हुए, मीन्स वी आर अबाइडिंग द रूल, इट इज अगेंस्ट द लीगलिटी ऑफ रूल्स। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज लीगलिटी ऑफ एग्रीमेंट, और दैट टू विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो शायद 1972 का था, उसके सेक्शन 10 में बताया है कि कंसिडरेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड अंडर सेक्शन 25
दिस व्यू एंड डिक्लेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। आपने पढ़ा होगा कल भी, वॉइड का मीन्स जो लॉफुल ना हो, जिसमें चीजें लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, वो ऑलरेडी कैंसल्ड या एक तरह से अमान्य कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो दोनों पार्टियों को मान्य नहीं हो, दोनों पार्टी के लिए वो कंसिडरेबल नहीं होता है। सो किस तरह के जो कंसिडरेशन है वो वैलिड होते हैं। So besides section 185 also provide a case of for a case where a contract without consideration shall be valid। बहुत कुछ assumptions के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं वो नीचे दी है। एग्रीमेंट्स इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, यानी कोई भी एग्रीमेंट हो वो राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। An agreement made without consideration is valid if and only if expressed in writing, राइटिंग में हो जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं दोनों पार्टियों के बीच में। दूसरा रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड मीन्स किसी भी जो आपकी जो लीगल फर्म है वहां पर वो रजिस्टर्ड हो। मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल जो जस्टिस है, नेचुरल लव है, नेचुरल अफेक्शन हो, उसके अकॉर्डिंग हो। मीन्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रॉपर ग्रीनरी हो, इस तरह की अगर कोई प्रॉमिस करता है तो वहाँ पर एक लॉयल्टी ऑफ एग्रीमेंट आता है कि वहाँ कुछ कंसिडरेशन किसके साथ, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर। जो दो पार्टी हैं, अगर दोनों पार्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फैमिली रिलेशंस में हैं, तब वहाँ वो एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। अगर उसमें कुछ कंसिडरेशंस ना हो तब भी वो वैलिड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक फैमिली मैटर्स आ जाते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो वहाँ पर वो कंसिडरेशन, ये आपका एग्रीमेंट वो विदाउट कंसिडरेशंस भी एक तरह से लीगल के रूप में ही काम करता है जहाँ फैमिली बिजनेस होता है। ये सब चीज़ें हैं। प्रॉमिस टू कम, ये आपका कहाँ गया, ये पहला था एग्रीमेंट इन राइटिंग, यानी राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो और साथ में नेचुरल जस्टिस के साथ हो, फैमिली अगर रिलेशंस हैं तो। दूसरा है प्रॉमिस टू कंपनसेट, अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करती हैं, या जो प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉपर डिवाइड करें या प्रॉपर उसका शेयर रखें। अगर इस तरह का दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तब भी वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है। प्रॉमिस टू पे डेब्ट बेयर बाय द लिमिटेशंस एक्ट, जो एक एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 25 का जो सेक्शन तो पैरा 3 है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉमिस है कि आपस में जो एक प्रॉमिस होगा कि टू पे ए डेब्ट बेयर्ड बाय द लिमिटेशंस एक्ट शैल बी वैलिड विदाउट कंसिडरेशन बिकॉज लीगली इट रिमेन्स नो लॉन्गर क्लेमेबल। सो अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं प्रॉपर और उनकी हिस्ट्री है, और बैंकिंग भाषा में देखें अगर दोनों का सिविल स्कोर ठीक है तब भी वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ये प्रॉमिस। लेकिन वो सब राइटिंग में हो और उसमें एक तरह से लीगल बाइंडिंग्स हो कि दोनों से साइन हो। एक completed gift, there is no rule consideration, no contract does not apply to completed gift। कि अगर हम कोई भी चीज अगर लीगली ना दे करके गिफ्ट के रूप में अगर अपने कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हम किसी फर्म में जाते हैं और वहाँ पे जाकर हमने देखा कि कोई फैक्ट्री ऐसे एरिया में लगी हुई जहाँ पॉल्यूशन हो सकता है, तो वहाँ बहुत सारे अगर ट्री अगर हम उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दें तो वो भी कंसिडरेशन उसमें आ जाता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कुछ एजेंसीज हैं जिसमें जिनको कोई कंसिडरेशन ज़रूरत ही नहीं होता, उनके बायलॉज में लिखा, उनके रूल्स में लिखा हुआ है, तो उनके साथ भी काइंड ऑफ MOU, काइंड ऑफ एग्रीमेंट, काइंड ऑफ ये सब होता है। चैरिटी, जितनी भी चैरिटी होते हैं आपने देखा होगा कि उनको कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना ही डोनेशन ले सकते हैं, कितना ही
पब्लिक सर्विस वर्क कर सकते हैं। यहाँ भी कोई प्रॉमिस इम्पोर्टेंट नहीं होता है और यहाँ पर कोई कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट कीजिए, लाइट गई है तो सर इंटरनेट बंद हो सकता है। लाइट जनरेटर अभी ऑन कराते हैं, रुकिए।
हेलो, कोई बताएगा क्लास चल रही है या ओवर हो चुकी है? चल रहा है, लेकिन सर का उधर का जो इलेक्ट्रिसिटी वो चला गया, तो सर दोबारा से ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। सर ब्रेक ले रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, हमारे रिसोर्स पर्सन के यहाँ लाइट का कुछ इशू है, तो आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे। वो अब दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। ओके ओके सर। Thank you, sir.